Hi friends, Rotary District 3141 is one of the premier Rotary districts around the world, doing amazing work for the community. Rotary Year 2021 is a vision year with District Governor Sunil Mehra at the helm of affairs, wherein many new initiatives have been introduced to create a difference and make Rotary seen. There's a Giver's Gain project to generate funds out of waste, which will be used to fund Rotary Foundation for various humanitarian projects. Under the Over is another initiative to beautify Mumbai and create utility spaces below all flyovers. Lots of efforts are also going on towards literacy, malnutrition, health, sanitation, and other verticals. WizBiz Talks is one more initiative, a novel concept in Virginia with an ideology to support Rotarians to support Rotary. WizBiz Talks is also to create more proximity and bonding amongst Rotarians on personal, Rotary, and professional fronts. In these interviews, friends, we speak to visionary Rotarians who, by virtue of their selfless work towards the community, have reached important decisive positions, and their actions today will help Rotary to serve more and make a difference. I am Dr. Manish Motwani, a weight loss surgeon, that's a bariatric surgeon, and Chief Coordinator for Rotary District 3141 in the year 2021. And I'll be your host on the WizBiz Talks. Friends, our guest on the WizBiz Talks today is a Rotarian with more than 3 decades of Rotary experience. A Rotarian from one of the most illustrious Rotary Club of Bombay Airport. Yes, friends, he is none other than Rotarian Centennial District Governor Rahul Timbadia. A graduate from Jai Hind College, law graduate from Mumbai University, diploma in entomology and ornithology. Started career in steel business, was director in Bombay Iron and Steel Merchants Association for 9 years. Diversified into business of land development, agriculture and resorts since 1986. Established a company, Latim Metal and Industries Limited, which has put up a color-coated steel plant in Umbergaon, Gujarat. Rahul is chairman and managing director of Latim Group that also owns Saj Resorts at Mahabaleshwar, Malsej Ghat and Pench. Friends, anyone who has been a Rotarian for some time and knows Rotary would know Saj Resorts, because that is the place where we lay the foundation of the next year of Rotary. Friends, that is a place where we've had multiple pre-pets, and Rahulji has been more than passionate and more than initiated to take this to the next level and given us that Saj Resort, where now every employee also is so trained that our pre-pets go on in one of the most smooth and flawless manner. Thank you, Rahulji, for that. And friends, he's also a leading name in farm development and infrastructure development in Panvel, Sudhagat, Pali, and also surrounding areas. Friends, the group also operates 6 restaurants at various places. So friends, he was invited to join Rotary as a charter member of Rotary Club of Bombay Airport in 1988, president in 93-94, governor in 2004-5 when Rotary celebrated its 100th year. As a governor, his achievements are many. Friends, this is like a lifetime achievement. You can only think in terms of words that what this means, but having 132 new Interact clubs, having 101 Railas, donating 80 lakhs to tsunami affected people, having 165 check dams in that year. Friends, this all is like he's developed an institution in itself. But the one most important thing that he has been known for is care for youth. And that is the reason so many Railas, so many Interact clubs. Rahulji, we still don't forget the amount of work you had done in the 100th year of Rotary. That is the one which has really made Rotary proud, and you have done an incredible work during then. But it was not only then, friends. At the end of the year, the district emerged as highest contributor to TRF for the whole country. And since then, there has been no looking back. He has been one of the most sought after people or sought after past district governors for every governor to come. He has been a chief advisor in 9-10. The RI also couldn't ignore the type of work that he has been doing. He was invited to be the zone coordinator for Zone 5 for Literacy Resource Group for 2008-9. He was a DRFC for 2010-13. You know the meaning of DRFC, friends? He is as involved as the district governor and the foundation team to ensure that the district foundation amount goes to the highest. And this was, if I'm not mistaken, Rahulji, even when y'all had Vijay Jalanji as the governor,
when it was the all-time high contribution to the Rotary Foundation. And friends, Rahul ji, without any iota of doubt, was one of the main people involved in that type of a contribution, because he is the District Rotary Foundation committee chair from 2010 to 13, where Vijay Jalanji, who had such an illustrious year, was also banking on the expertise of Rahul ji for getting the type of foundation contributions, going by the past record of what Rahul ji had done during his year. Friends, currently he is the Assistant Rotary Public Image Coordinator. He's a Rotary International Disaster Management Committee Zonal Coordinator. He's himself a Rotary benefactor. He's a Rotary advisor for public image. He's himself a major donor, friends. He leads with an example. So इन्होंने एक मन में डाल के रखा है कि in Rotary Foundation we ask people to contribute to Rotary Foundation, because Rotary Foundation is the foundation through which we carry out various Rotary activities. But he says, no, I will not just go and ask. I will lead with an example. He became a major donor first. He became a benefactor first. He became a Polaris Society member first. And then he started asking people for the money for others' good. And he never faced any regret ever. He has been like a golden man with a golden touch. Anything he touches, friends, touches gold. And he's also the recipient of Rotary Foundation citation for meritorious service. His wife Amita is a driving force. She's a past inner wheel chairman of District 314. His son Parth and daughter Radhika, also a part of the Rotary family. They have been international youth exchange students in Canada and France respectively. Friends, I present before you our Centennial District Governor, a man who always stands for the rights of others, always stands for truth, a person who believes to create new leaders, a person who has been in the forefront of taking many strategic and transforming decisions in Rotary, a friend, philosopher, and guide, very understanding, very considerate, sympathetic, and generous Rotarian, Centennial District Governor, Rotarian Rahul Timbadia. Yes, friends. Rahul ji, namaste, and thank you so much for obliging us by giving us your time and coming on this talk show, the Whiz Biz Talks. Namaste, Manish. Frankly, I am also flabbergasted by your introduction. And I also am thankful to you for this great opportunity. I am sure that you will be able to extract something out of me, which you will be able to carry home, and also the listeners. So with these words, I will request you to go ahead, please. Rahul ji, the purpose of this interview, COVID has hit us and hit us hard. Because of COVID, we are not able to meet each other. Otherwise, till now in the district, we would have had 20 fellowship events, 20 district events, but we have not been able to meet people. So ये एक जरिया है राहुल जी, जिससे हम हमारे दिग्गज लोग जिन्होंने रोटरी को लीड किया है, जिन्होंने रोटरी को इस मुकाम पे पहुंचा है, उनसे बात करते हैं, उनकी भावनाएं और उनकी आइडियाज हम हर रोटेरियन तक पहुंचाना चाहते हैं. And with these ideas, I am telling you, people are going to learn from your experience, learn from your Rotary journey, and this will also ensure that those Rotarians who are fence sitters and not come into the common pool, they will jump into the common pool. Those Rotarians, those non-Rotarians who have been having queries in their mind about joining hands with Rotary will join hands with Rotary for various Rotary projects. You might get new members. So Rahulji, now I am there definitely to take care of the interview as a host, but the entire responsibility is on your shoulders, because we want that by your interview, we should have at least 20 new Rotarians to the Rotary field. We should have so many non-Rotarians and so many Rotarians who should jump inside the well to ensure that, yes, Rotary grows, the work of Rotary goes and promoted everywhere. So thank you for your consent, Rahulji. We'll move it. Rahulji, Rotary journey is very influencing, and your work has also been very influencing, how you've started and how you've reached where you are. But we would still like to know something more about you as a person, your personal family, and anything and everything about you on the personal front. Manish, as far as my person, about my person's self is concerned, you have almost covered almost everything in my introduction itself. But I would like to tell you something very interesting which happened many, many years ago. Sitting in front of you and giving you interview, it reminds me of an incident that happened around 55 years ago. In a classroom of 8th standard in Kalbadevi Road, in a school which was being operated by a trust,
a Hindi teacher entered the classroom and said, बच्चों आप लोग की टेस्ट है, मतलब आपकी ऐसे की टेस्ट है। और टीचर ने ये कहा कि बच्चों ऐसे का सब्जेक्ट है मेरे ख्वाब। आप लोग को, अब बच्चों को मैं आपको 45 मिनट देता हूँ और 45 मिनट में आपको ऐसे पूरा करना है, आपके ख्वाब को लिखना है, फिर मैं पेपर वापस ले लूंगा और आपको 2 दिन के बाद आपको ग्रेड दूंगा ABC और D। और उसने ये भी कहा कि बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत रखती है। करके पेपर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब बच्चों ने लिखना चालू किया। ज्यादा करके बच्चों ने लिखा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने लिखा कि मैं प्रोफेसर या टीचर बनना चाहता हूँ। कुछ जो बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे उन्होंने लिखा कि मैं पायलट या तो कमांडर बनना चाहता हूँ, और उससे भी ज्यादा जो ज्यादा बच्चे एम्बिशियस थे उन्होंने लिखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। एक बच्चा ऐसा था कि जिसने ऐसा लिखा कि मेरा ये ख्वाब है कि मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हो, बम्बई से इर्द गिर्द 50-60 किलोमीटर में एक ऐसा फार्म हो कि जिसके चारों ओर पहाड़ियां हो और जंगल हो। और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे फार्म के बीच में एक छोटा सा तालाब हो और उस तालाब में मैं फिशलिंग्स या तो फिश के बच्चे डालूंगा और एक बोट रखूंगा, और एक जब सही टाइम आएगा तब मैं बोट में घूम के तालाब में से फिशिंग करूंगा। उसने ये भी लिखा कि मैं मेरे फार्म में आम लगाऊंगा, लीची लगाऊंगा, काजू लगाऊंगा और तरह तरह के फल लगाऊंगा। और उसने ये भी कहा कि ये तालाब के बाजू में मैं एक छोटा सा फार्म हाउस बनाऊंगा। और इतना करके वो रुक नहीं गया, उसने फार्म हाउस की डिजाइन भी बनाई, कितने बेडरूम बनाएगा, किसको वो बेडरूम अलॉट करेगा, वो सब लिखा। और उसने लिखा कि उसके बाजू में मैं एक तबेला रखूंगा। और उसने लिखा कि इस तबेले में मैं 2 घोड़े रखूंगा, एक सफेद घोड़ा होगा और एक काला घोड़ा होगा। और सुबह 6 बजे मैं काले घोड़े में बैठ के पूरा फार्म घूमूंगा और शाम को 6 बजे मैं सफेद घोड़े में बैठ के पूरा फार्म घूमूंगा। और उसने ये भी कहा कि फार्म का वो हिस्सा कि जो पहाड़ियों पे होगा उधर मैं एक रिसोर्ट बनाऊंगा। और ना ही वो इतना करके रुका, उसने रिसोर्ट की डिजाइन बनाई, उसमें 50 कमरे बनाऊंगा, उसमें क्या क्या एमिनिटीज बनाऊंगा, ऐसा करके उसने पूरा ख्वाब लिख के उसने अपना एसे कंप्लीट किया और टीचर को सबमिट कर दिया। 2 दिन के बाद टीचर वापस आए, सबको ग्रेडिंग देना चालू किया, किसी को A, किसी को B, किसी को C। जब इस बच्चे का नंबर आया तो टीचर रुके और उसने कहा कि खड़े हो बेटा। और उसने कहा कि बेटा बच्चा तुम्हें मैं D ग्रेड देता हूँ। सब लोग को आश्चर्य हुआ, बच्चे को भी शौक लगा क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें D ग्रेड इसलिए नहीं देता हूँ कि तुमने निबंध अच्छा नहीं लिखा है, मैं तुम्हें D ग्रेड इसलिए देता हूँ कि तुम्हारा ख्वाब गलत है। ने कहा कि बेटा ख्वाब ऐसा रखो कि जिसके पीछे तुम भाग के उस ख्वाब को पकड़ सको। ऐसा अगर ख्वाब रखोगे कि जिसके पीछे आप जिंदगी भर भागते रहो और उस ख्वाब को अगर पकड़ नहीं पाओगे तो तुम डिप्रेस हो जाओगे, और जो व्यक्ति डिप्रेस होता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हें देने के लिए साइकिल के पैसे नहीं है और तुम्हें 200 एकड़ का फार्म चाहिए, उसमें तालाब चाहिए, उसमें बोट चाहिए, तुमको बंगलो चाहिए, तुमको घोड़े चाहिए, तुमको होटल चाहिए। ऐसे ख्वाब कभी मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ये निबंध वापस देता हूँ, तुम्हें और तक देता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा ग्रेड बदल दूं तो तुम्हें तुम्हारा ख्वाब बदलना होगा। बच्चा वो निबंध लेके वापस चला आया। शाम तक वो सोचता रहा, कंफ्यूज हो गया। रात को उसके चाचा के पास चला गया, चाचा को पूरी बात बताई। चाचा को उसने ऐसे दिया, चाचा ने पूरा निबंध पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखो कि हर किसी को अपना ख्वाब चुनने का अधिकार होता है और वो ख्वाब अपना पूरा भी कर सकता है अगर उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। तो ये तुम्हारा ख्वाब है और अगर तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो ये ख्वाब रखो, वरना हर व्यक्ति को अपना ख्वाब बदलने का भी अधिकार होता है। अभी तुम सोचो। बच्चे को निबंध वापस दे दिया। बच्चा रात भर सोचता रहा क्या करना। दूसरे दिन सुबह स्कूल में पहुंचते ही टीचर्स रूम में चला गया जहाँ टीचर बैठे थे, हिंदी के टीचर। टीचर के हाथ में वही का वही निबंध थमा दिया और कहा कि सर आप मेरा ग्रेड बदलो या ना बदलो, पर मैं मेरा ख्वाब नहीं बदल सकता। ऐसा करके निबंध लेके आया। उसके बाद टीचर के साथ क्या हुआ वो इतनी महत्व की बात नहीं है, पर उसके ठीक 22 साल के बाद मनीष, उस बच्चे ने मुंबई से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी पनवेल में एक 200 एकड़ का फार्म ले लिया। उसमें तालाब भी था, उसमें बोट भी थी, उसमें 2 तबेला भी था, उसमें 2 घोड़े भी थे।
और उसी जगह पे उसने एक रिसोर्ट भी बनाना चाहा और फार्म हाउस बनाना चाहा, पर वो बना नहीं पाया क्योंकि उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसका कुछ लीगल इश्यू आ गए। पर उसके ठीक 10 साल के बाद मनीष वही लड़के ने वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल ले ली जिसके 80 कमरे थे, और खैर बंगलो उसने दूसरी जगह पे बना लिया। 2000 1999 में वो टीचर, उस समय वो लड़का उधर कैंपिंग एक्टिविटीज करता था, उसने क्लब का नाम रखा था विस किड्स क्लब। वही टीचर अपने स्कूल के बच्चों को लेके उसके पास आए कैंपिंग एक्टिविटीज के लिए। जब वो टीचर जा रहे थे, उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे ख्वाब को कुचल नहीं सका। 2002 में वो टीचर तो चल बसे और वो लड़का आज की तारीख में आपके सामने बैठा है। Rahul ji, this is incredible story. And friends, this is what is Rotarian Rahul Timbadia. This is what is Rotarian Rahul Timbadia. As many times you listen to him, you get engrossed in his talk. It is like music ringing in your ears, because he has got a very different knack of speaking, and he only speaks with examples. His life has been full of experiences, and just by narrating the experiences, he lets us know what we should be doing. And Rahulji, I sincerely thank you once again for what you have spoken till now. अभी तो just शुरुआत है, but आपने बहुत सारी चीजें हमको सिर्फ ये एक छोटी चीज से सिखा दी। जैसे आपके लाइफ में हुआ था, वैसे रोटरी में भी हमें अगर कुछ करना है तो हमें कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा सोचना है तो ही हम को काम कर सकते हैं। अगर हमारी सोच ही छोटी रहेगी तो हम हासिल क्या करेंगे। सो thank you so much for your golden words. This will always be there in my heart, because this is what you have now conveyed to me with so much of conviction and passion. Thank you so much, Rahulji. Rahulji, we also, you did start about saying us through your dream about your business, but tell us something more about your profession and your business and how your family is involved in your business. ओके मनीष, ऐसा है कि ये जो फार्म की बात कर रहा हूँ वो तो मैंने 1987 में लिया। 1997 में मैंने मेरे करियर स्टार्ट की। मेरा साइंस ग्रेजुएशन मैंने जय हिंद कॉलेज में किया उसके बाद, और उस समय मैं स्टील का ट्रेड कर रहा था और मैं इंपोर्ट कर रहा था। मोस्टली मेरा जाना हुआ था जापान, कोरिया, जर्मनी और बेल्जियम, उस जगह से मैं माल इंपोर्ट करता था। आज की तारीख में एज फार एज स्टील बिजनेस इज कंसर्न, वी हैव अ स्टील प्लांट, एज यू ऑलरेडी said by at the time of my introduction. We make color coated galvanized sheets in Umbergaon. आज हमारी कैपेसिटी है साल की 1 लाख टन की, और वो हम बेचते हैं लाटिम ब्रांड से। 1987 में जब मैंने फार्म लिया, उसके बाद मैंने स्टील का बिजनेस थोड़ा कम कर दिया, और 87 से मैंने रियल एस्टेट, उस समय मैंने फार्म हाउस की स्कीम की, और सबसे मिला जो मेरा फार्म हाउस तो आज भी बहुत फेमस है, वृंदावन फार्म से, और जहाँ सलमान खान का फेमस फार्म हाउस है, वो सबसे मेरा प्रोजेक्ट था। सलमान खान इज वन ऑफ माय कस्टमर्स। उसी में मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थोड़ा इश्यू आया था, पर उसके बाद मैंने करीब 900 या 950 एकड़ जगह हमने डेवलप की है। आज की तारीख में भी मेरे पास करीबन 1200 एकड़ की लैंड बैंक है। 1997 से मैंने उसमें डाइवर्सिफाई करके मैंने सबसे पहला होटल खरीदा, जो साज होटल महाबलेश्वर। उसके बाद मैंने दूसरी होटल साज मार्कसेड में की, तीसरी होटल पेंच में की, चौथा मेरा जो हम लोग एक थीम के हिसाब से चलते हैं, तो वन इज साज एट द माउंटेन, वन इज साज बाय द लेक, थर्ड इज साज बाय द फॉरेस्ट, एंड फोर्थ विल बी साज बाय द सी। तो वो हमारा चौथा है। आज की तारीख में बच्चे वगैरह भी हमारे साथ ग्रुप में सब मिले हुए, हम सब मिलके काम करते हैं, और उसमें आज हमारी 6 रेस्टोरेंट है और 2 और रेस्टोरेंट हम लोग गोवा में चालू करने वाले हैं। अभी जो मेरा फ्यूचर का जो प्लान है, वो एक वसुधा वोटर्स करके बंगलो स्कीम में चालू करूंगा, क्योंकि 6 साल से रियल एस्टेट में कोई काम नहीं किया। तुम जानते हो रियल एस्टेट की परिस्थिति बहुत ही खराब है, और अभी मुझे लगता है कि इसका समय बदल रहा है। और अभी जो मैं इस उम्र में जो डाइवर्सिफाई करना चाहूँगा, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिंसियरली ऐसा मानता हूँ कि वी हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल एज फार एज 2 इंडस्ट्रीज आर कंसर्न। One is tourism industry and second is agriculture industry. We already are in tourism industry and hospitality industry, but I would definitely like to contribute something as far as agriculture industry is concerned. मैं बड़े पैमाने पे farming activities में जाने वाला हूँ. That's my plan. Fantastic, Rahulji. Because whenever we meet people, they say, yes, education is something good, hospitality is something good, but yes, farming, it is, I was with one of the Rotarians the other day, where they gave us a lot of details about how farming can be good for
so many, you'll be giving employment to so many people. At the same time, it is good for the one who starts it. So all the best, and congratulations for such a lovely thought. Rahulji, coming back to Rotary, Rotary has been like embedded in you, and you have been a book of Rotary almost, and people have been learning from your experiences. You've been involved in Rotary so much. I would like to know, and you have been such a strong supporter of Rotary Foundation. I would like to, one, extend our initiative to you about what all we have been doing in Vision Year 2021 for Rotary Foundation. But at the same time, we would like to know some ideas, because you've been such a lovely foundation man, something from your end to inspire the Rotarians, to inspire non-Rotarians to contribute towards Rotary Foundation. So what can we do to get major donors, minor donors, small donors, and every Rotarian of District 3141 contributing to the Rotary Foundation? Some ideas from your end, some inspiring talk from your end, sir, for this. ऐसा है कि सबसे पहले सबको ये समझना चाहिए कि रोटरी से आप क्या गेन करने वाले हो। मैं अभी भरत पंड्या का, आरआई डायरेक्टर भरत पंड्या का भी सुन रहा था, उसने भी कहा कि अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज पीपल आर, स्पेशली यंग पीपल आर इंटरेस्टेड in knowing what is there in Rotary for them, in Rotary for them. तो आज ये रोटरी फाउंडेशन का सिंपल प्रिंसिपल पहले समझना चाहिए, रोटरी प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर समझना चाहिए, रोटरी फाउंडेशन में कहाँ से पैसे आते हैं वो समझना चाहिए, और रोटरी फाउंडेशन से किस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो समझना चाहिए। जब आज हमें ये मालूम पड़े कि रोटरी फाउंडेशन में पैसे देने से एक तो सही जगह पे जा, दूसरी बात हमको ये समझ में आया कि आज सही जगहों में दुनिया में जो गिनती जाती है उसमें भारत सबसे पहले ऊपर नंबर 1 में, टॉप में है। रोटरी फाउंडेशन में नंबर सबसे ज्यादा पैसे यहाँ आते हैं। तो अगर हमारे दिए हुए पैसे एक तो सही जगह पे खर्च किए जाते हैं, और दूसरी बात, और वही पैसे अगर मल्टीपल होके अगर हमारे पास आते हैं तो उसके जैसी बढ़िया प्रपोजल कोई हो ही नहीं सकती। पर आज मुझे ये भी कहना है कि आज अगर कोई बोले कि हम रोटरी में दे क्यों पैसा, या तो आज हमारे पास हमारे खुद के लिए करने के बहुत सारी चीज है, तो हम दूसरों के लिए क्यों करें। आज मेरे रिश्तेदार है, मेरे आसपास वाले हैं, मेरे फैमिली है, उनके आसपास, तो दूसरे के लिए क्यों करें। तो मुझे सबसे पहले कहना यह है कि मनीष, 1987 में जब मैंने फॉर्म लिया, उसके पहले मेरे पास सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1987 में जब मैंने वो 200 एकड़ जगह ली जो पनवेल से करीबन 10-10.5 किलोमीटर दूर थी और पहाड़ियों के बीच में थी, उसमें सिर्फ ट्राइबल लोग रहते थे, ट्राइबल लोग के सिर्फ 5 घर थे। तो जब मैं उधर गया और जब मैंने डेवलपमेंट चालू किया, तब मैंने देखा कि गर्मी की सीजन में जब तालाब में पानी नहीं होता है, कि जब आदिवासी लोग वहां से मच्छी नहीं पकड़ सकते और वो लोग जंगल से लकड़े नहीं काट सकते, क्योंकि कभी कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कन्ने रहते तो उनको पकड़ लेते हैं, और जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो लोग वहां से चूहे पकड़ के खाते थे। और मैंने मेरी निगाह के सामने देखा कि 8 साल का लड़का, एक 10 साल की लड़की भाग के किस तरह से चूहा पकड़ते, और चूहा पकड़ के उसके मुंह पे जो खुशी की लहर आई क्योंकि उनको खाना मिला। तब मुझे, उसके पहले तो मैं सब स्टील इंपोर्ट में था, तो मैं तो जापान, जर्मनी, बेल्जियम घूमता था, कोरिया घूमता था, तब मैंने इस तरह की गरीबी का सिर्फ सुना था पर देखा नहीं था। और मुझे ये एहसास नहीं था कि बम्बई से 50 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि वहां के आदिवासी लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, उनको चूहा खाना पड़ता है। तो फिर जब मैं उसके बाद 1988 में, 87 के बाद 88 में मैंने रोटरी ज्वाइन की, और तब मैंने देखा कि रोटरी इतना ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें फाउंडेशन का भी मैंने स्टडी किया, रोटरी के पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा मैंने उसका ऑर्गेनाइजेशन जब मैं से देखा, तब मुझे मालूम पड़ा कि रोटरी में जिसको जो भी करना हो वो करने के लिए एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो लोग ने इस तरह से एवेन्यू बनाया हुआ है। आपको सिर्फ देखना है कि आपको किस इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट था और यूथ एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट था, और फिर जब मैंने उधर वही आदिवासी लोगों के लिए जब मैंने काम करना चालू किया, और जब मैं उन लोग के कुछ लिए कुछ कर पाया, तब मुझे इतनी खुशी हुई, मनीष, इतनी खुशी हुई, तब मुझे लगा कि वो वर्थवाइल है। जब मैं उधर अच्छी 5 स्टार होटल में खाना पीना, बिजनेस क्लास में उड़ना, जापान, कोरिया या इंग्लैंड जाके घूमना, उससे भी ज्यादा जब मैं उस बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कर पाया, तब मुझे ज्यादा खुशी हुई।
और उससे भी एक बात बताओ कि जिसने मेरा सोचने का पूरा तरीका बदल दिया। उसी फार्म में जब एक बार मैं काम कर रहा था, सुबह से शाम मेहनत करते थे हम लोग गर्मी में, क्योंकि 250 एकड़ का डेवलपमेंट इतना आसान नहीं था, मुझे 1.5 साल में पूरा करना था। एक दिन शाम को थका हुआ मैं मेरी गाड़ी के पास खड़ा था, उस समय मैं सिगरेट पी रहा था। उस समय पीता था, आज नहीं पीता हूँ, तो पी रहा था। तब मैंने देखा, तो मेरा मेरा जो मैनेजर था उसका मैं इंतजार कर रहा था कि वो आए तो मैं घर की ओर चल दूं। उस समय मैं देखा कि एक आदिवासी सा आदमी दूर से आ रहा था, और उसको देख के मुझे लगा कि ये मेरे से कुछ न कुछ मांगेगा। उसके बिखरे हुए बाल, उसके फटे हुए कपड़े, जिसके पाँव में चप्पल नहीं थे, इस तरह से अस्त व्यस्त आदमी मेरी ओर आ रहा था। और उस समय मैं इतना थका हुआ था कि मैं किसी से कुछ बात करने के मूड में भी नहीं था, ना ही किसी को कुछ देने के मूड में था। तो मैंने उसकी ओर देखना अवॉइड किया। अगर मैं उसके सामने देखूं तो मेरे सामने बोलेगा, मैं नहीं देखूंगा तो चला जाएगा। उस आदमी मेरे पास आया, कुछ बोला नहीं, ना कुछ मांगा, मेरे सामने पत्थर पे बैठ गया। 2 मिनट 5 मिनट जब सामने आपके कोई सामने बैठा हो तो आप कितने टाइम तक उससे आंख नहीं मिलाओगे। तो मैंने अल्टीमेटली सिगरेट फेंक के उसके सामने देखा। जैसे उसकी और उसकी मेरी आंख मिली तो उसने स्माइल किया। और स्माइल एक ऐसी चीज है मनीष कि वो अच्छी अच्छी दीवारों को तोड़ देती है। फट से जो उसके और मेरे बीच में जो मैंने दीवार खड़ी की थी वो टूट गई। और आई वाज कंपेल्ड टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। और मैंने उसको पूछा, क्या कुछ मदद करूं, क्या कुछ मदद चाहिए? और उसने सिर्फ 3 शब्द बोला, किसको नहीं चाहिए। उसका सिर्फ ये जवाब था। मेरे सामने स्माइल करके उसने कहा कि किसको नहीं चाहिए। उसका वो जवाब था, वो एक गोले की तरह मेरी छाती पे लगा। ऐसा मुझे उसका इम्पैक्ट हुआ उस समय। तो जो देना था वो दे दिया। फिर मैं दिन भर सोचता रहा, रात भर ट्रैवलिंग में भी सोचता रहा, किसको मदद नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन देना के लिए किसी की मदद चाहिए। मेरा प्लान पास कराने के लिए मेरे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद चाहिए। फिर शाम को थका हुआ जब आता हूँ तब मुझे मुझे मेरी वाइफ से मुझे सहानुभूति, प्रेम वो चाहिए। मेरे बच्चों से मुझे कुछ तरह की बिहेवियर चाहिए। मुझे दोस्तों का मुझे साथ चाहिए। मुझे हर तरह कहीं ना कहीं लोगों की मदद चाहिए ही चाहिए। तब मेरे दिमाग में ध्यान आया कि ये आज अल्टीमेटली जीवन में है क्या, किसी से मदद लेना और किसी को मदद देना। हर किसी को मदद को लेने की जरूरत होती है, हर किसी को मदद को देने की भी जरूरत होती है। क्योंकि क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ऊपर वाला देखता है कि ये मदद किसी को देता है तो मैं उसको मदद दूं। मुझे क्या मालूम कि वो जो मेरे सामने वो आया था, वो आदिवासी या भिखारी सा आदमी जो था, हो सकता है कि ईश्वर ने ऊपर से देखा होगा मेरी ओर। उसने देखा होगा कि ये आदमी जो गाड़ी के पास बैठा हुआ सिगरेट सिगरेट पी रहा है, खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है, उसको बहुत बड़ी मदद की जरूरत लगने वाली है कुछ सालों के बाद। और मुझे देखना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए कि ये आदमी मदद के लायक है कि नहीं। तो उसने ट्राई करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, हो सकता है कि उसके फरिश्तों को बुलाया हो और फरिश्तों को बोला कि जाओ उस आदमी के पास जाके मदद मांग। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हें मदद देता है या नहीं देता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरी मदद के लायक है या नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मनीष, वहां से मैं ये सीखा हूँ कि हर किसी को मदद चाहिए। हर किसी को मदद मिलने के बाद किसी न किसी को मदद इसलिए देनी चाहिए कि उस मदद से उसको बहुत खुशी मिलेगी, उसको जिंदगी, अपनी खुद की जिंदगी वर्थवाइल लगेगी। और कोई माने या नहीं माने, मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि किसी के लिए कुछ करने से आपको एक पुण्य मिलता है, वो जो सही में आपको उस समय पे काम आता है कि जब आपको एक्चुअली किसी की मदद की बहुत जरूरत होती है। और उसके लिए फाउंडेशन एक ऐसा जरिया है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। वहां से आप लोग को कई तरह की पॉसिबिलिटी है। आप उसमें चुन सकते हो कि किसके लिए, कौन सी जगह पे, किस गांव में, किस काम के लिए आपको पैसा देना है। और उसका इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कि उससे अच्छी कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ट्रस्ट पूरे वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसको किसी के लिए मदद, किस ऊपर वाले से मदद की इच्छा हो और किसी को मदद करने की इच्छा हो अपने खुद के लिए, तो उसमें रोटरी में मेंबर बन के फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया राहुल जी, बहुत ही बढ़िया। एंड देयर इज समथिंग एल्स आल्सो फ्रेंड्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ जॉय ऑफ गिविंग। आप देते हो, उसमें भी आपको खुशी मिलती है। हमारे एक आज क्लम सोसाइटी मेंबर हैं, सैफ कुरैशी। उनका कहना है कि जब भी वो किसी को देते हैं तो वो सामने वाले को थैंक करते हैं और ऊपर वाले को थैंक करते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर समवन एल्स। सो वेरी 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 lovely words which really make an impact. So Rahul ji, it was one of the most inspiring talks that I have ever heard too. राहुल जी, you know that अभी कोविड के टाइम पे भी रोटरी 3141 did projects worth more than 80 crores
just in the city of Mumbai. And फिर भी लग रहा था कि बहुत कम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे थे, फिर भी we felt we were short of hands, short of ideas. We wanted to do something more. Money is never been a problem in Rotary. आप project सोचो, पैसा खुद ही खुद आ जाता है. So we think that membership also plays a very important role. New members, new ideas coming in. Tell us something about what are your views about membership. Should we try to add more members in a club, or add more Rotary clubs, or you feel membership retention is what more important? Something on membership. ऐसा है मनीष कि आज से पहले किसी को मेंबर अब बनाने जाओ तो आज हर आदमी का सोचने का तरीका करीब करीब ऐसा होता है कि व्हाई शुड आई बी अ मेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए, और आज कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी कुछ भी कहे, आज रोटरी आज की तारीख में हमारा फोकस है सर्विस एंड दूसरा फोकस है फेलोशिप आज की तारीख में. लेकिन एक बहुत बहुत ही एक अहमियत बात है as far as Rotary is concerned, that you gain a lot out of it. You gain a lot after becoming a Rotarian. तो मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको Rotarian क्यों बनना चाहिए, क्योंकि membership is directly connected with your willingness to join a Rotary club, and your willingness of being a Rotarian would depend on what you are going to gain out of it. मैं जब 1988 में जब मैं रोटरी क्लब मैंने ज्वाइन किया, तब बिजनेस में तो मैं सक्सेसफुल था ही उस समय, पर मैंने देखा कि आज जो मैंने स्कूल में नहीं सीखा, जो मैंने कॉलेज में नहीं सीखा, जो बिजनेस में इतने सालों का 1971 से 1988 17 साल के एक्सपीरियंस में नहीं सीखा, वो मुझे रोटरी ने सिखा दिया. और वो एक चीज मैं सीखा, और इतने साल के तजुर्बे से मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ मनीष कि अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना है, if somebody wants to be successful in life, he has to learn to manage 4 things in life, and those 4 things are: you must know how to manage time, second thing is how to manage money, third thing is how to manage human beings, people, and the fourth thing is how to manage ideas. तो मैंने देखा कि जब मैं रोटरी क्लब में ज्वाइन हुआ तब मैंने देखा कि रोटरी क्लब का सबसे बड़ा कल्चर, अगर जो सबसे एक यूनिक है और सबको ये सीखना है लाइफ में, वो टाइम मैनेजमेंट. रोटरी क्लब के प्रोग्राम सही टाइम पे होते हैं. रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जहाँ 2,000 आदमी आते हैं, वो उसने लिखा हुआ प्रोग्राम लिखा हुआ था, 9 बजे एक प्रोग्राम है, 9:02 को, या 9:05 को ये है. तो जो भी आदमी रोटरी में ज्वाइन होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो सबसे पहले सीखता है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि that is the first requirement of Rotary principle. That is the discipline Rotary expects from you. So that is number 1. You will learn how to manage time. Second thing is you will learn how to manage money. आज पैसे तो हर किसी के पास होते हैं, पर पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है. मनीष, आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग पिताजी से पाए हुए पैसे, इनहेरिटेड मनी, तो वो लेते हैं, पर वो लोग उस पैसे को संभाल नहीं सकते. कई लोग भी पैसे वाले बनने के बाद वो पैसे खो देते हैं और वापस अपनी तबाही कर देते हैं. अनिल अंबानी जैसा अपने सामने एग्जांपल भी है, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता, but that is an example right now in front of us. So my point is कि आज अगर मैं मेरी जेब से 2,000 की 5 नोट निकाल के अगर फाड़ के अगर फेंक भी दूं तो मुझे कोई कह नहीं सकता. पर अगर मैं रोटरी में प्रेसिडेंट हूँ, या तो रोटरी में ऑफिसर हूँ, या रोटरी का ट्रेजरर हूँ, और अगर मैं 1,000 रुपया भी खर्चा करता हूँ और अगर उस चीज का मेरे पास जवाब नहीं है तो नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरी पेनी. And you are answerable, and there is no escape as far as that is concerned. The reason is only one. Money said that you are dealing with equals. आज मेरी कंपनी में बॉस हूँ मैं, अगर मेरे मुनीम जी को मैं कुछ भी कह सकता हूँ, रोटरी में तो everybody is equal. And that is where if you take the responsibility, you become answerable for each and every penny. You have to plan everything, you have to budget everything, and that is where you learn how to manage money. And the third is very very important. Everybody must learn how to manage human beings too. ऐसा होता है कि सुबह आप उठो और रात को आप सर्वेंट को मिलोगे, हस्बैंड को, वाइफ को मिलोगे, अपने बच्चों को मिलोगे, अपने कुक को मिलोगे, मेड को मिलोगे, नीचे उतरोगे, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, कार ड्राइवर, मैनेजर. आप पूरे दिन सुबह से शाम आपको एक ही चीज करना है, वो आप ह्यूमन बीइंग्स को हैंडल करना है. और मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अच्छी तरह से ह्यूमन बीइंग को हैंडल नहीं कर सकती, वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होती. और रोटरी विल कंपेल यू टू लर्न हाउ टू मैनेज ह्यूमन बीइंग्स.
बिकॉज यू आर डीलिंग विथ इक्वल्स. अगर आपने एक आइडिया भी सोचा कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, और अगर आप वो आइडिया अगर आप अपने बोर्ड मेंबर्स को अगर कन्विंस नहीं कर पाए तो आप वो कर नहीं सकते. So you will be compelled to learn how to manage human beings, and that is also very important. The fourth, in very short, I will say that when you take the post, your club members are watching you. Your district officers are watching you. When you become district officer, the whole India is watching you. When you become RI director, the whole world is watching you. So people are watching, and people expect you to perform. तो जब आपने कोई भी पोस्ट ली है तो इसका मतलब है कि आपने परफॉर्मेंस का कमिटमेंट किया है, और जब आपने कमिटमेंट किया है तो आपको करना ही है, और करना है तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा. आइडिया कोई आपको मॉल में नहीं मिलेगा. आप यू बी कंपेल्ड टू थिंक ऑफ सम न्यू आइडियाज, एंड नॉट ओनली दैट, विद द हेल्प ऑफ अदर्स यू विल हैव टू टेक कैरी people with you, and you will know how to convert ideas into reality, ideas into action. So if you are a senior Rotarian, you are a serious Rotarian, then you will learn how to manage all these four things, and that is the foundation of your being successful in life. So that is what my message to everybody is, that be a member of Rotary Club. You will learn what you will never be able to learn anywhere else. No organization, no institute, no training institute, no school, no college, not your business, not your experience of anywhere else will teach you what Rotary is going to teach you. And the first and the foremost step is you be a Rotarian. Fantastic, sir. Lovely thoughts again. And two important points that he has said, and we should all take it very seriously, is one, till the time you don't become a member, you really don't come to know what Rotary is. And it is very important because you start defining yourself well, you start knowing yourself well, your capacity well. We are always working either with seniors or subordinates, so it's always in one system that you're working. But when you're working amongst equals, that is where your actual caliber comes out, because you have to start respecting everyone's ideas, you have to respect others' views and still take your work forward. So absolutely brilliant thoughts, sir. And I'm telling you, these are definitely going to propel many people to come and join the bandwagon of Rotary. Finally, sir, one question which has been really coming to my mind very often, very often, that how do you like Rotary of today? And I know Rotary is brilliant, but would you like to see a change in Rotary? Say, what would you like to see a Rotary of 2025, Rotary of 2030? You know, फिर मैं एक बार भरत पंड्या का नाम दूंगा. He is a very dear friend of mine. उसने कहा है कि आज की तारीख में रोटरी की मेंबरशिप कम होती जाती है. आज कोई भी चीज अगर वो पहले जैसी नहीं रही और उसका मतलब उसका शान शौकत कम होता जा रहा है, तो इट्स एन अलार्मिंग पॉइंट. आपको सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में जो यंगस्टर्स है, वो लोग सबसे पहले पूछने वाले हैं कि मेरे लिए इसमें है क्या. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं. आज मैंने जैसे कहा कि रोटरी इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, वो कॉर्पोरेट लेवल से भी ज्यादा है, जहां 12 लाख रोटेरियन वो वॉलंटियर्स है, वो रोटरी के लिए वो काम कर रहे हैं, और हर चीज मतलब प्री डिजाइन, प्री स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स. सो आई मीन देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट इट. इट्स वेरी वेरी नाइस. पर एक बात मैं कहूंगा कि रोटरी की कुछ चीजें ऐसी है जो रोटरी को और सब ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है. तीन चीज. एक तो है इंटरनेशनलिटी, दैट इज नंबर 1. सेकंड थिंग इज क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, एंड थर्ड अटेंडेंस. I won't say anything about attendance rules, but I would like to focus on classification principle. Classification principle ये है कि आपको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में अगर आप लीडर हो तो आपको इनविटेशन आएगा रोटरी क्लब से, एंड द मेंबरशिप ऑफ रोटरी इज ओनली बाय इनविटेशन, नॉट बाय एप्लीकेशन. तो उसका मतलब ये हुआ कि एक क्लासिफिकेशन का जो लीडर है वो रोटरी में मेंबर बनेगा. और अभी तो कुछ हमने ये रिलैक्स कर दिया रूल. पहले तो इतना स्ट्रिक्ट था कि एक क्लासिफिकेशन से एक ही लीडर आता था, और या तो दूसरे को लाना हो तो उसके लिए आपको दूसरे पहले वाले का एनओसी लेना पड़ता था. आज इसमें रिलैक्स काफी हो गया, फिर भी क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल स्टिल एग्जिस्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए. अभी आप सोचो कि जो भी एक रोटरी क्लब बनेगी, जैसे हमारे यहाँ 112-15 जो भी रोटरी क्लब है, आज वो अपने आसपास इर्द गिर्द के एरिया में से जो जितने क्लासिफिकेशन होगा
उसके लीडर को अपने वहां बुलाएंगे तो एक ऐसा होमोजीनियस स्ट्रक्चर बनेगा रोटरी का कि आपको कोई भी काम के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब कि आपको एक रोटेरियन दूसरे रोटेरियन से डीलिंग करेगा। और मैं ये एक रोटेरियन से डीलिंग करे, उसमें उसको कोई बेनिफिट मिले या तो उसको कोई भी तरह का कंसेशन या डिस्काउंट मिले, पर एक फेथ तो है, एक फैमिली तो है। और आज पूरा वर्ल्ड का रोटरी फैमिली, रोटेरियंस इस तरह से एक दूसरे से नेटवर्क में बाउंड है कि आज मैं कलकत्ता के रोटेरियन से अगर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं अगर किसी को भी पूछ लिया, उसके क्लब प्रेसिडेंट को पूछ लिया, उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को पूछ लिया, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, उस आदमी की कैपेसिटी कितनी है। तो आज अगर हर क्लासिफिकेशन में वहाँ हो और हमारे पास कोई भी काम करने के लिए मैं किसी के पास जा सकता हूँ, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट उस काम मेरे पास जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रिंसिपल स्ट्रेंथन करो, पर वो स्ट्रेंथन करने का फायदा क्या अगर बिजनेस नेटवर्किंग नहीं है। तो मैं ये चेंज चाहूंगा कि आज की तारीख में रोटरी का जो फोकस फेलोशिप और सर्विस के ऊपर है, उसका एक और फोकस बढ़ाना चाहिए, उसका एक और पहलू बढ़ाना चाहिए डायमंड की तरह, कि जिसमें रोटेरियन का एक दूसरे के साथ बिजनेस नेटवर्किंग हो। क्योंकि आज अगर मैं किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो किसी के लिए कुछ करने के लिए भी मेरे पास रिसोर्सेज चाहिए। और रिसोर्सेज क्या होता है? टाइम होता है, आपका एजुकेशन होता है, पैसा होता है, ये सब रिसोर्सेज होता है आपके पास। तो टाइम तो खैर अपने पास ऊपर वाले ने दिया ही है, अनलिमिटेड सब समान टाइम दिया हुआ है। ये जो पैसा है, बॉटम लाइन पैसा भी आज अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपके पास वो रिसोर्स है तो आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो ये जो बिजनेस नेटवर्किंग है, वो एक दूसरे के साथ काम करने से, एक दूसरे की एक्सपर्टीज और एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने से, वो नेटवर्किंग करने से आज हर कोई चाहेगा, जो आदमी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, स्पेशली यंगस्टर्स, they really want to do something in life and they are materialistic, and I wouldn't say that to be materialistic is bad in life. Ultimately bottom line क्या है? हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? आप किसी के लिए कुछ कर पाओ और अपने आप के लिए कुछ कर पाओ। तो किसी के लिए कुछ कर पाना और अपने लिए कर पाने के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्स क्या है? मनी इज अ रिसोर्स and networking is the right source, and we have, because of classification principle in Rotary, we have tremendous opportunity to exploit these resources available to us handy. I am sure that we should try to exploit them. राहुल जी, सर एक चीज आपको बताऊंगा दैट थोड़े साल पहले तक, मुझे अभी 20 साल हो गए रोटरी में, थोड़े साल पहले तक ऐसे माना जाता था कि अगर आप रोटरी में बिजनेस की बात निकालो तो दे यूज्ड टू लुक एट यू वेरी डिफरेंटली। नहीं, ये तो अपने सेल्फिश मोटो से आ रहा है, बट वी हैव टू चेंज विद द coming generation, and if we don't change we can perish, so we have to change with the coming generation. One. Absolutely. Second, sir, this is the purpose of WizBiz Talks. WizBiz Talks is to create more bonding and proximity amongst Rotarians on personal, Rotary and professional fronts. Sir, ये साल बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को प्रोफेशनल नेटवर्किंग करने का मौका दे रहे हैं. We have started Rotary Means Business. You are knowing that that's an official. We've now got 2 branches of RMB in Mumbai. We'll come up with many more in time to come. Thana also has got one. सर, इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि आज फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने WizBiz Talks लिया है, सो आई टोल्ड यू टू स्पीक अबाउट योर बिजनेस इन डिटेल. ये सर कभी नहीं होता था रोटरी में, हम सिर्फ रोटरी के बारे में बात करते थे. We wanted you to speak about your business in Rotarian because today you might not require someone, but some other Rotarian would like to get associated with you. Sir, मैं एक bariatric surgeon हूँ, weight loss surgeon हूँ, and I am the chief bariatric surgeon with Hinduja Hospital Khar and Raheja. I have my own hospital at Mulund. I'll tell you one thing, sir. Today, if I have got 100 vendors in the hospital with whom, जहाँ प्रोफेशन की बात आती है प्रोफेशन है, बट जहाँ पे मैं लोगों से सामान परचेस करता हूँ, जहाँ पे सर्विसेज लेता हूँ, there comes the business part of it. Out of 100 people who are there, who are my vendors, sir, 90 are Rotarians. Again, the point that you said, your experience, that trust. जब एक Rotarian आता है, you trust them blindly because you know that we are here to give and we are very clear, transparent and trustworthy people. तो जब ये आ जाता है ना सर, फिर दूसरा कुछ सोचना नहीं पड़ता. And I'm 100% resonating with every word that you have said, and this will really go a long way in making Rotary more stronger. I'm sure if this professional networking comes into Rotary, if the idea that we have in mind that we should have more women in Rotary, we should have youth in Rotary, so this will take a jump, and our
membership, which was 1.2 for decades and which came down to 1.185 million, will go to more than 1.4, 1.5 million in time to come. It is only that we have to accept it. Yes, we have to allow professional networking in Rotary and things will become Yes. different. So, sir, this was the absolute idea. So it's literally like we both are having uh, Thought process. Yeah. a similar thought process. I'm so happy that you have touched on this point, because when it comes from a senior person like you, when it comes from a respectable person like you, when it comes from an experienced person like you, it makes 10 times more difference. So, sir, I'm immensely thankful for you for all what you have said through examples and through your words, through your ideas. It's going to help n number of people. It will help many more people to get associated with Rotary also, and it's going to be a blessing in disguise. So a small idea of Biz Talk, sir, where we just wanted to create more bonding because we were not able to come in touch with people. और सर आपको ये बताऊंगा, ये हमने जुलाई 1 को स्टार्ट नहीं किया है. हमने ये जो Biz Talks है, we started in the first week of June. And just to tell you, sir, you are the 195th interview that I am taking. This is 195th interview. Just 2 days back, we had taken Dr. Bharat Pandya's interview. We've taken every past district governor's interview, because I took the interview of all presidents so that their ideas could be sent to many other presidents who want to join with them for work, for various projects. I also ensured that they speak about their profession so that many other Rotarians can tie up with them for their businesses. But I'm having a totally different experience now, sir. Since past 2 weeks, when I've started interviewing past district governors, Arts Club Society members, Rotary International directors, Rotary Foundation trustees, and all those people who have lived with their example, sir, I am learning a lot. And now it has become my selfish motto that if I want to learn, I will keep speaking to people like you, because it gives me absolutely all that what you want. So I'm getting so many rich years of experience, sir, directly. It's all like a spoon feeding to me. Thank you so much, sir, for all what you have said today. I'm telling you, we just need your blessings in Rotary 3141 for the year 2021 and years to come. People like you are going to drive this year ahead. People like you are going to lead with examples and help us in achieving all the greater heights for Rotary. Not just for this year, sir, for Rotary for 2021, 21, 22, 22, 23, and years to come. So, sir, thank you so much for the privilege given for this to have this interview. It has been a lovely experience with you on Biz Talks. We would take the liberty of posting these videos to all Rotary clubs, social media pages of Rotary District 3141. Your interview is going to be viewed by Rotarians and non-Rotarians alike. I'm sure this interview will inspire many others to work with Rotary or associate with Rotary for service projects. Since you're a strong supporter of the work done by Rotary and Rotary Foundation, I would request you, sir, one small request. Please get us connected to your industrial connects. We want that Rotary Foundation's fund should never get depleted. It should only get replenished, because you and I have the same ideas that if Rotary Foundation is alive, it will help Rotarians to do big work and more work. So let's do some things together, sir, to support Rotary and thus support mankind. Thank you so much, Rahulji, for your presence. I literally feel like bowing in front of you for the type of work you have done. Thank you. Thank you very much. I really enjoyed this. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.